Assalamualaikum, hey viewers, welcome to my YouTube channel, The Basics of English. In this video, I'm going to revise future tenses, including future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. तो अगर आपने मेरी पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी, तो ये वीडियो लास्ट में देखिएगा, क्योंकि इसमें उन चारों वीडियोस को इकट्ठा किया हुआ है मैंने. First of all, I'm going to explain the future indefinite tenses. अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जब काम का आने वाले वक्त में होना या करना पाया जाए तो इसे उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक और इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है. और इसकी पहचान ये होगी कि उर्दू में इस ज़माने की पहचान ये है कि फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं, जैसा कि मैं सबक याद करूँगी, हम स्कूल जाएंगे. Now the usage of future indefinite tense is means where to use and when to use future indefinite tenses. The future indefinite tense is also known as simple future tense. The simple future tense is used to talk about things which we can not control. It expresses the future as fact. यानी इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई ऐसी बात करनी हो जो हमारे कंट्रोल में ना हो और वो बात जो है वो हकीकत को जाहिर करे. फॉर एग्जाम्पल, I shall be 23 next birthday. The teacher will punish him. पहले सेंटेंस में देखिए कि मैं अगले साल अगली बर्थडे को 23 बरस की हो जाऊंगी. ये चीज़ मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, ये तो फैक्ट है. अगर मैं इस साल 22 की हूँ तो अगले साल 23 की ही हो जाऊंगी ना. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर विल पनिश हिम. टीचर विल पनिश हिम कि उस्ताद उसे सजा देगा, और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है बात. ठीक है ना. तो इस सूरत में हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. Second use is we use this tense to talk about what we think or believe in the future. For example, I am sure Ali will get first position. The second, I think Pakistan will win the match. The third use of future indefinite tense is we can use this tense when we decide to do something at the same time of speaking. At the time of speaking. For example, it is raining. I will take an umbrella. Number 4. We use going to form when we have decided to do something before talking about it. यानी कि जब हमने अपनी बात करने से पहले ही कोई फैसला कर लिया हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाई अ कार. फैसला कर लिया है और अब मैं कार लेने जा रही हूँ. Remember that if the action is already decided upon and preparations have been made, we should use the going to form but not the simple future tense. ठीक है, जब हमने कोई फैसला कर लिया और हम काम करने जा रहे हैं तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि विल शैल का इस्तेमाल करें. Number 5. We also use the going to form about what seems likely or certain when there is something in the present that is about the future. For example, it is going to rain. Look at those clouds. The boat is full of water. It is going to sink. On the other hand, the simple future tense is used for an instant decision. 6. The going to form may also express an action that is on the point of happening. For example, let's get into the train. It's going to leave. Now the structural formula is स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए हमें चाहिए होगा विल और शैल. सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें विल और शैल भी चाहिए होगा. और विल यूज़ करेंगे हम दी शी इट दे यू के साथ, और शैल इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ. रिमेंबर दैट. याद रखिए, अगर किसी फिक्रे में वादा, धमकी या यकीन पाया जाए तो आई वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे और ही शी इट दे यू के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाएगा.
So you have to remember that in present day English, however, there is growing tendency to use will in all persons. यानी कि ज़्यादातर आजकल will का ही इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम subjects के साथ. Shall is sometimes used in the second person you and third person he, she, they to express command, a promise or threat as. यानी कि shall का इस्तेमाल किया जाएगा जब हमने कोई कमांड देनी है, कोई प्रॉमिस करना है या फिर किसी थ्रेट का इजहार करना है. फॉर एग्जाम्पल कमांड, he shall not enter my house again. Promise, you shall have a holiday tomorrow. Threat, you shall be punished for this. In this tense, we use first form of verb. Now the structural formula for simple sentences: subject plus will, shall plus first form of verb plus object. For negative sentences, subject plus will not, shall not plus first form of verb plus object. For interrogative sentences, will, shall plus subject plus first form of verb plus object, then question mark. Now the examples are: मैं एक किताब खरीदूंगी. I shall buy a book. मैं एक किताब नहीं खरीदूंगी. I shall not buy a book. क्या मैं एक किताब खरीदूंगी? Shall I buy a book? Second example, उस्ताद तलबा को सजा देगा. Teacher will punish the students. उस्ताद तलबा को सजा नहीं देगा. The teacher will not punish the students. क्या उस्ताद तलबा को सजा देगा? Will the teacher punish the students? Shall is used in first person I, we and will in all persons to express pure future. Today, I, we, shall is less common than I, we, will. यानी कि वही बात कि आजकल ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो will का इस्तेमाल किया जा रहा है I, we के साथ, बजाय इसके कि shall का इस्तेमाल किया जाए. अगर ऐसी कोई सूरत हो तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि अगर कोई वादा, धमकी या यकीन पाया जाए तो हम I, we के साथ will का इस्तेमाल करेंगे. he, she, it, they, you के साथ shall का इस्तेमाल किया जाएगा. Now the example, तुम अपने वालिदैन का हुक्म ज़रूर मानोगे. You shall obey your parents. The second example, हम तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे. We will wait for you. देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में ज़रूर का लफ्ज़ आया है, यानी कि ये चीज़ लाजमी करनी है. तो यहाँ पे जहाँ पे विल का इस्तेमाल किया था वहाँ पे शेल का इस्तेमाल करना है, जहाँ शेल का था वहाँ पे विल का. यानी यू के साथ आमतौर पर विल लगाया जाता है, लेकिन ऐसे सूरत में, यकीन की सूरत में हम क्या करेंगे, वहाँ पर शेल का इस्तेमाल करेंगे. और जहाँ पे वी के साथ शेल का इस्तेमाल था यहाँ पे हम करेंगे वी के साथ विल का इस्तेमाल. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस. First of all, we have to know the definition of future continuous tenses. In उर्दू में इसकी तारीफ ये होगी कि जिस काम का आने वाले ज़माने में जारी रहना पाया जाए, इसे उर्दू में फेल मुस्तकबिल जारी और इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. और इसकी पहचान क्या होगी? तो इसकी पहचान ये होगी, उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा हूँगा, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, रही होंगी या फिर रहे होंगे वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं. मिसाल के तौर पर, वो घर जा रहा होगा, धोबी कपड़े धो रहा होगा. दोनों फिक्रों के आखिर में देखिए रहा के साथ होगा लगाया गया है. जो रहा है ये कंटिन्यूस की अलामत है और जो होगा है ये है फ्यूचर की अलामत. तो इसलिए ये दोनों जुमले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के. Now, what is the usage of future continuous tenses? Mean, where to use and when to use future continuous tenses. Number one, we use future continuous tense to talk about actions that will be in progress at a time in the future. For example, I suppose it will be raining when we go outside. यानी कि जिस काम का आने वाले ज़माने में जारी रहना पाया जाए, इसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. The second usage is, we also use this tense to talk about actions in the future which are already planned or which are expected to happen in the normal course of things.
यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमने फ्यूचर में होने वाले काम के मुतालिक बात करनी है और वो काम जो हो वो पहले से ही प्लान्ड हो और साथ ही साथ उम्मीद भी हो कि ये फ्यूचर में हमारा काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। फ्यूचर कंटिन्यूस की तारीफ, पहचान और इसके यूजेज के बाद हमें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मालूम होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस के स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ साथ चाहिए होगा विल बी और शैल बी, यानी कि द यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। शैल बी यूज किया जाएगा आई और वी के साथ, जबकि विल बी इस्तेमाल किया जाएगा ही, शी, इट, दे, यू के साथ। इस टेंस में विल बी और शैल बी का रूल वही है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का होता था। और एक और बात याद रखें, अगर किसी फिक्रे में वादा, धमकी या यकीन पाया जाए तो आई वी के साथ विल भी लगेगा और ही, शी, इट और दे, यू के साथ शैल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि विल बी और शैल बी का इस्तेमाल इस सूरत में वादा, धमकी या यकीन की सूरत में चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। Now the structural formula is for simple sentences use subject plus will be or shall be plus first form of verb plus ing plus object. For negative sentences subject plus will not be or shall not be plus first form of verb with ing plus object. For interrogative sentences will or shall plus subject plus be plus first form of verb with ing plus object and then question mark. Examples. Number one, the example is वो झूठ बोल रहा होगा. He will be telling a lie. वो झूठ नहीं बोल रहा होगा. He will not be telling a lie. क्या वो झूठ बोल रहा होगा? Will he be telling a lie? The second example is हम कमरा सजा रहे होंगे. We shall be decorating the room. हम कमरे सजा नहीं रहे होंगे. We shall not be decorating the room. क्या हम कमरा सजा रहे होंगे? Shall we be decorating the room? So this was all about future continuous tenses. Definition of future perfect tense in उर्दू. उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, यानी कि जिस काम का आने वाले ज़माने में मुकम्मल होना पाया जाए उसे उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल और इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी। उर्दू फिक्रों के आखिर में चुका होगा, चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, चुके होंगे और चुकी होंगी वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। मसलन वो कराची जा चुका होगा, अली खाना खा चुका होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कामों का होना पाया जाए तो जो काम पहले हुआ इसके सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और जो काम बाद में हुआ हो इसका तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फेल हाल मुतलिक की तरह ही किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जागने से पहले वो चाय पी चुका होगा। He will have taken tea before I get up. देखिए इस एग्जाम्पल में जो बाद में चीज़ आई है वो चाय पी चुका होगा, यानी कि एक काम जो है मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा उसकी ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो बाद में करना है काम इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सूरत में करेंगे। He will have taken tea before I get up. सेम रूल वही है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस का था। Now the usage of future perfect tense is future perfect tense is used to talk about action that will be completed by a certain future time. For example, he will have gone to school. Now the structural formula, we use will have and shall have. इसमें will have और shall have का इस्तेमाल
किया जाएगा। रूल इसका वही होगा जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस में था, विल और शैल का। फ्यूचर इंडेफिनिट में था विल और शैल का, फ्यूचर कंटिन्यूस में था विल बी और शैल बी का। फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल। अब ये जो विल हैव है ये इस्तेमाल किया जाएगा ही शी इट दे और यू के साथ, और जो शैल हैव है ये सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर किसी फिक्रे में वादा, धमकी या यकीन पाया जाए तो आई वी के साथ विल हैव और ही शी इट दे यू के साथ शैल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही जैसे कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल और विल बी और शैल बी के इस्तेमाल को तब्दील किया था, बिल्कुल इसी तरह इस टेंस में भी विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल उलट जाएगा जब हमारे पास फिक्रे में वादा, धमकी या यकीन पाया जाएगा। विल हैव और शैल हैव के इस्तेमाल के साथ साथ हमें इसमें चाहिए होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ द प्रॉपर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंसेस: subject plus will have or shall have plus third form of verb plus object. For negative sentences, subject plus will not have, shall not have plus third form of verb plus object. For interrogative sentences, will have, sorry, will, shall, subject plus have plus third form of verb plus object. Then put a question mark. Now the examples are: उसने कपड़े इस्त्री किए होंगे. She will have ironed the clothes. उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए होंगे. She will not have ironed the clothes. क्या उसने कपड़े इस्त्री किए होंगे? Will she have ironed the clothes? हम मकान तब्दील कर चुके होंगे. We shall have changed the house. हम मकान तब्दील नहीं कर चुके होंगे. We shall not have changed the house. क्या हम मकान तब्दील कर चुके होंगे? Shall we have changed the house? ये तो एग्जाम्पल्स होगी उन सेंटेंसेस के बारे में जो कि सिंगल हैं। आइए अब वो देखते हैं जो कि डबल सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि इसके वापस आने से पहले मैं खत लिख चुका हूँगा. I shall have written a letter before he returns. इस सेंटेंस में भी देखिए जो काम पहले मुकम्मल हुआ है इंग्लिश में, I shall have written a letter, यानी कि मैं एक खत लिख चुका होगा. Before he returns मतलब उसके वापस आने से पहले. तो जो काम एक सेंटेंस में मुकम्मल हो चुका है फ्यूचर में मुकम्मल होगा, उसका हमने फ्यूचर परफेक्ट की सूरत में ट्रांसलेशन करनी है उसकी, और जो इंग्लिश में दूसरा हिस्सा होगा उसमें उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की सूरत में ट्रांसलेट करना है. So these were the examples of future perfect tenses. Hope you understand this. Future perfect continuous tenses, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. इसकी तारीफ ये होगी जिस काम का मुस्तकबिल बईद के ज़माने में मुकर्ररा वक्त या मुद्दत तक जारी रहना पाया जाए, इसे उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी और इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान ये होगी कि जब ज़माना मुस्तकबिल में काम का जारी होना ज़ाहिर हो और ये भी ज़ाहिर हो कि अभी काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ, तो इस सूरत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह इसके जुमलों के आखिर में भी आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह जैसे अल्फाज. लेकिन फ़र्क ये होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस में सिर्फ और सिर्फ वाक़े की खबर दी होगी, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वाक़े के साथ साथ वक्त के बारे में भी बताया जाएगा. यानी कि इस टेंसेस में भी सेंसर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा. आगे हम देखेंगे सेंसर फॉर का इस्तेमाल, और उससे पहले हमें पता होनी चाहिए इसकी यूजेज, इस्तेमाल. The future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. यानी कि जब कोई काम आने वाले ज़माने में जारी पाया जाए तो इस सूरत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, he will have been doing work for 3 days. अब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ साथ चाहिए होगा
will have been or shall have been. Now, what is the usage of will have been and shall have been? Means where to use will have been and where to use shall have been. Will have been is used with he, she, it, they, you, and shall have been is used with I and we. यानी कि सेम इस्तेमाल वही है जो कि हमने फ्यूचर के पिछले टेंसेस में विल और शैल का किया था. Now, in the sentence, use first form of verb with ing. स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट विल हैव बीन शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के साथ साथ हमें चाहिए होगा सिंस और फॉर. आइए अब देखते हैं सिंस का इस्तेमाल कब करना है और फॉर का इस्तेमाल कब करना है. तो जो सिंस का इस्तेमाल है वो हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी वक्त के तयन के लिए. मसलन दोपहर, शाम, सुबह, रात. किसी दिन का नाम, महीने का नाम, घड़ी का वक्त और तारीख वगैरह के लिए. इसे दूसरे लफ्ज़ों में मुआयना मुद्दत का नाम भी दिया जाता है. और जब फॉर का इस्तेमाल करना है वो अब हमने करना है जब अरसा या मुद्दत यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की जाए. मसलन 10 मिनट, 2 घंटे, 7 दिन, 3 हफ्ते, 15 बरस वगैरह. फॉर को दूसरे अल्फाज में कहा जाएगा गैर मुअय्यना मुद्दत. Now let's see the proper structural formula of future perfect continuous tenses. For simple sentence, subject plus will have been, shall have been plus first form of verb with ing plus since or for plus object. For negative sentences, subject plus will not have been, shall not have been. First form of verb with ing plus since or for plus object. For interrogative sentences, will, shall plus subject plus have been plus first form of verb with ing plus since or for plus object at the end. Put a question mark. Now these are the examples. Number 1. हम रात से मुतालिया कर रहे होंगे. We shall have been studying since night. हम रात से मुतालिया नहीं कर रहे होंगे. We shall not have been studying since night. क्या हम रात से मुतालिया कर रहे होंगे? Shall we have been studying since night? इस जुमले में देखिए कि हमें रात के बारे में बताया गया है यानी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है तो इसलिए यहाँ पर since का इस्तेमाल किया गया है. The second example is वो 1 घंटे से आराम कर रहा होगा. He will have been taking rest for an hour. वो 1 घंटे से आराम नहीं कर रहा होगा. He will not have been taking rest for an hour. क्या वो 1 घंटे से आराम कर रहा होगा? Will he have been taking rest for an hour? अगर आपको अभी भी कोई सिंस और फॉर के मुतालिक कन्फ्यूजन है तो डोंट वरी, लुक एट दीज एग्जांपल्स. मई में नवंबर से बर्फबारी हो रही होगी. इट विल हैव बीन स्नोइंग इन मरी सिंस नवंबर. द सेकेंड एग्जाम्पल, मरी में 2 माह से बर्फबारी हो रही होगी. इट विल हैव बीन स्नोइंग इन मरी फॉर 2 months. देखिए इन एग्जाम्पल्स में पहले वाले सेंटेंस में मैंने महीने का नाम बताया है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम बताया है इसलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया है. और दूसरी वाली एग्जाम्पल में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि 2 माह से यानी कि यहाँ पे अरसा और मुद्दत बताई गई इसलिए यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया है. तो यही इन दोनों का डिफरेंस है जो कि अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता होता है. सो डोंट बी वरीड अबाउट इट. जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स कि अगर हमारे पास महीने का, दिन का नाम दिया जाएगा या फिर वक्त की जगह पर एग्जैक्ट वक्त बताया जाए यानी कि 8 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, अगर ऐसे बताया जाएगा तो हमने सिंस का इस्तेमाल करना है. और अगर हमें कहा जाए कि 2 घंटे से, 2 माह से, 2 सालों से यानी कि एग्जैक्ट वक्त ना बताया जाए तब हमने फॉर का इस्तेमाल करना है. बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा. So never forget these 2 points.
So this was all about the future tenses and the region of future tenses, including future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Hope you understand this video and these four tenses. If you like, then subscribe to my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.